Good morning, friends. As I promised to upload my first video on Friday, I am going to record it now. So, what is the motto of creating this channel? This channel is Ignited Youth. All of a sudden, a thought came to my mind. Why India is a developing country still now? When will it develop? Who will develop it? Who will play a significant role in its development? तो इसके बाद मैंने ये चैनल क्रिएट किया। तो बैकग्राउंड ये होता है कि देयर आर $1 million क्वेश्चंस। एज यू नो, 2 questions: why India is still developing, how it will develop. As we know, there are 3 countries: developed, developing and underdeveloped. It is based on different factors like economic status, including parameters like GDP, GNP, per capita income, standard of living, etc. In comparison to others, development countries development countries are economically progressed and technologically progressed. Developing countries display how industrialization, low industrialization and low human development index. Reason why India is still developing. India is still developing because it has low per capita income, large dependence on agriculture sector, less dependence on secondary and tertiary industries, huge population, unequal distribution of assets and income, poor quality of human capital. There are so many reasons. I have taken a few important causes. Apart from these, social evils like discrimination, gender-based biasness, religion-based politics, superstition also hinders our growth. The most important issue is the demand aspect. People are not willing to purchase cars or electronic devices because they do not have money. Reason is unemployment. And for everything we cannot blame government. As a citizen of this country, we have to take some responsibility, and our youth should come forward to undertake risky ventures. They should recognize their potential. They should use their time, energy in a positive direction. That is why it is told that student power is nation power. Hence, students or youths should not run after job. Job means join others' business. They should be a job creator instead job seeker. तो ये गया why India is still developing. तो how can it will develop? In making India a developed nation, students have to come forward, take risks, accept challenges. They should come out of their comfort zone. ये बोलना बहुत आसान होता है, पर करने के लिए करेज चाहिए. एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ. कुछ दिन पहले की बात है. मेरा हिंदी बहुत पोर था. ये मैं सोचता था. मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हिंदी नहीं बोल पाता था. मेरे को लगता था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा. तो लोग क्या सोचेंगे? एक लेक्चरर होकर भी अपना नेशनल लैंग्वेज बोल नहीं पाता है. ये डर मुझे अंदर कोस रहा था, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा था. अभी कुछ दिन पहले एक जूम मीटिंग में स्पीकर ना ज्वाइन होने के कारण ड्यू टू सम नेटवर्क इशू और अदर मुझे बोलने का मौका दिया गया. मैंने अपने अंदर करेज डेवलप किया, मौके को जाने नहीं दिया, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो हिंदी में बोलता चला गया. बोलते बोलते कब आधा घंटा से ऊपर बोल दिया मुझे पता ही नहीं चला. अभी भी मैं इतना शानदार हिंदी बोल नहीं पा रहा हूं, पर उस मीटिंग के बाद मेरे अंदर का जो डर था वो चला गया. अभी देखो मैं खुल के हिंदी में बोल रहा हूं. इसे कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर आना. हमारा जो मेंटल ब्लॉकेज होता है उसे हटाने से हम सक्सेस की ओर जा पाएंगे. हमारी यूथ
के अंदर पोटेंशियल है, हमें पहचानना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर आकर चैलेंजेस एक्सेप्ट करके देश को आगे बढ़ाना होगा। कितने दिन जॉब के चक्कर में भागोगे? ऐसे भी 2-3% जॉब को छोड़ के बाकी सब में हम एक टूटा फूटा कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ ही जीते हैं। फॉर अस स्काई इज द लिमिट होना चाहिए। खुद को या फिर आने वाले पीढ़ी को अगर डेवलप्ड इंडिया में देखना चाहते हो तो अभी से सोच बदलो, देश बदलेगा। स्टार्टअप बनाओ, चैलेंजिंग कैरियर चूज करो, इंटरनेट का सही उपयोग करो, सोशल मीडिया का भी सही उपयोग करो, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनो, तब जाके इंडिया डेवलप बनेगा। ये जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, जब आप कंफर्ट जोन से निकलोगे तब सक्सेस आपको वेट करती होगी। तो ये सब बता दिया मैं, कैसे हम कंफर्ट जोन से मैं निकला हूं, मैं कैसे हिंदी अभी बोल पा रहा हूं। मेरा हिंदी थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, पर मेरे को अंदर से जो फियर था वो फियर चला गया। तो मैं भी कंफर्ट जोन से आया, अभी नेशनल लेवल पे भी हिंदी बोल पा रहा हूं। तो यूथ को या स्टूडेंट को कंफर्ट जोन से आना है, और कंफर्ट जोन से आने के बाद वो सक्सेस पा पाएंगे। क्योंकि हमारी जो जॉब मेंटालिटी है, वो जॉब मेंटालिटी वाले मेंटालिटी से हमें बाहर आना होगा। तो देखिए ये क्या क्या माइंडसेट होता है एक जॉब सीकर का और एक जॉब क्रिएटर का। जॉब सीकर का होता है क्या? एक्टिविटीज टाइम बाउंड एंड टास्क गिवन। जॉब क्रिएटर का होता है अटेम्प्टिंग टू क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। A job seeker dependent on others, a job creator being independent create jobs. Job seekers are not creative, but job creators are creative, innovative and highly dynamic. They feel unfettered, but the job creator have freelance time. Job seekers are becoming a servant, but job creators they trying to help other people. What is the present scenario? ये जो कोरोना की वजह से क्या हुआ? IT jobs are vanished now. Work from home culture is developed. Achievement of credential preferred over academic credential. आजकल क्या हुआ? एकेडमिक क्रेडेंशियल को हम ज्यादातर प्रीफर नहीं करते हैं, हम अचीवमेंट क्रेडेंशियल को प्रीफर करते हैं। राइजिंग मिडिल क्लास अफोर्डिंग देयर चिल्ड्रेन टू टेक रिस्क। देन मोस्ट जॉब होल्डर्स आर अनहैप्पी विद देयर जॉब्स। Most job holders are unhappy with their jobs. Nowadays, the corporate culture, corporate job holders are not happy with their jobs. They are not going to their home after job happily. Then possible future क्या हो पाएगा? Work in a job that make you feel happy. आप अगर ऐसा कोई फ्यूचर आ जाए जब आप ऐसे कोई जॉब में हो तो आप हैप्पी फील कर सके, खुशी फील कर सके, खुशी अनुभव कर सके। डूइंग चैलेंजिंग वर्क दैट यू आर इंटरेस्टेड। तो यू हैव टू डू सम वर्क वेयर you will be interested to do that job. You as a youth you should accept challenges. A challenging work should be there. A challenge, if you accept some challenging job, you will be interested to do the job. So feel appreciated and know you are making a difference. So you have to appreciate, you have to feel appreciated always and know that you are making a difference. Enjoying the company of people. If you are not able to enjoy the company of people, then you will not be happy. Content with financial reward and you know you deserve it. Content means you have to satisfy whatever financial reward you are getting. You should be satisfied with that and you must know that you are deserving it. Most important is when you return home, your family, even your dog is happy to see you. If you are not satisfied, if your family members after returning home they are not happy with you, then what is the difference? What is the meaning of that job? देन सोल्यूशन। सो मैं क्यों बोल रहा हूं आप जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनिए, ये नेसेसिटी हो गया है। नेसेसिटी क्या है? जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के लिए क्या नेसेसिटी है? चेंज इन माइंडसेट फ्रॉम सीकर्स टू गिवर। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट पार्ट। जैसे मैं बोल रहा था, हमें अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए।
इसलिए चेंज इन माइंडसेट फ्रॉम सीकर्स टू गिवर, ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये अपना जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो इंडो यूएस टाई ग्लोबल समिट में बोल चुके हैं। अभी रियलिटी क्या है? रियलिटी है वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी क्या है? बिकमिंग ए जॉब क्रिएटर इज ए ड्रीम ऑफ मेनी बट द जर्नी ओनली फ्यू आर एबल टू सक्सेसफुली टेक। बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, जॉब क्रिएटर हो, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, बट असल में बनने में ये जर्नी थोड़ा आसान नहीं है, ये डिफिकल्ट होता है, उतना सहज नहीं है। सिंपल होता है बट उतना सहज नहीं है। तो अभी हाउ कैन वन कैन बी ए जॉब क्रिएटर, कैसे हम जॉब क्रिएटर हो सकते हैं? थ्रू नॉलेज ऑफ द चूजन सेक्टर। इफ समवन अभी कोई जॉब क्रिएटर बनना चाहता है तो वो एक जितना सेक्टर होगा वो एक सेक्टर से एक सेक्टर पहले चूज करेगा, जिस सेक्टर में उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। देन एक्सपीरियंस, इफ इट इज द फैमिली बिजनेस इट विल बी गुड, इफ नॉट यू विल लर्न दैट, क्योंकि ना हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। देन फैमिली सपोर्ट, इफ वी गेट फैमिली सपोर्ट देन व्हाट एवर थिंग वी कैन अचीव इट। तो if we are doing entrepreneurship for the first time, then we can also do if we have family system. Then sound financials will be added advantage. Without finance, without money, business cannot be started. So if someone having financial soundness, then the business can be done easily. Then we have to learn people management skill. For to be a job creator, people management skill is important, because आगे जाके हमें लोगों को मैनेज करना है, लोगों के साथ बिजनेस करना है, एम्प्लॉय के साथ बिजनेस करना है। तो एम्प्लॉय का जो अच्छा बुरा वो सब हमें मैनेज करना है। कोई आज एब्सेंट रहेगा, कोई नहीं आएगा, तो हमें उसके साथ कैसे बिहेव करना है, क्योंकि मशीनरीज काम नहीं करते, मशीनरी को चलाने के लिए तो लोग चाहिए। तो इसीलिए हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल आज हुई है, उनका HR जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो कहते हैं जिसके पास जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा वो ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ए कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मशीनरी तो सबके पास समान ही होगा, पैसा होगा तो अच्छा मशीनरी हम खरीद सकते हैं, पर अच्छा लोग हम खरीद नहीं सकते। तो इसीलिए वी हैव टू मैनेज पीपुल लाइक इन ए वेरी गुड मैनर। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मेन होता है, क्योंकि बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट जनरेट करना। और प्रॉफिट कैसा आएगा? प्रॉफिट आएगा बिजनेस का जो प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को बेचने से प्रॉफिट आता है। तो प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए मार्केट में, उसका डिमांड कैसे क्रिएट किया जाए, वो प्रोडक्ट का जो कैसे प्राइसिंग किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हमसे मैन्युफैक्चरर से कैसे ये प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे। और हमें डायनामिक होना है। डायनामिक मीन्स to be a job creator we have to adjust ourselves to every situation, each and every situation. If we are not flexible, we are rigid, then we will be demotivated. So in order to be a job creator we have to be dynamic. This is very very important. Then concluding remark, change your thoughts, change your life. So if you have to change your life, then you have to change your thoughts from job seekers to job creators. So ये रहा आज का प्रेजेंटेशन। थैंक यू ऑल। तो ये आज का प्रेजेंटेशन ओवरऑल ये रहा, मैं थोड़ा बहुत समराइज कर देता हूं। हमें जॉब क्रिएटर से जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। तो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर कैसे बने? पहले हमको हमारा जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से आना होगा, बाहर आना होगा, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री में वही तो डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है ना? उनका माइंडसेट का डिफरेंस होता है। हम अगर एक बार कुछ भी 7-8 साल से और 10-12 साल का अगर लड़का एक शू पॉलिश कर लेगा, तो हमारा आदमी इंडिया में क्या बोलते हैं, तू क्या मोची हो गया? तो ये होता है। तो ऐसा हमारा ये जो माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट हमें ये जो मेंटल ब्लॉकेजेस होता है उसको चेंज करना पड़ेगा। हमें हमारा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब जाके हमारा इंडिया डेवलप्ड बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों। हमें ऐसे, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं हिंदी में थोड़ा गड़बड़ा रहा हूं। अभी
दूसरी बार ट्राई करूंगा, अच्छा वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।